Hello, everybody. Good evening to all of you. I'm Dr. Aman from Odontos University, welcoming you all to today's YouTube presentation. नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे आज के YouTube शो पे। आज हम YouTube में 16 दिसंबर 2020 को होने वाले नीट MDS पेपर के बारे में बात करेंगे। पिछली बार मैंने गौर किया था कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आप लोग सब इस वीडियो को देखने के साथ साथ ही क्रोम पर एक नया टैब खोल लो। क्रोम, देखिए मैंने क्रोम खोल रखा है, तो यहाँ पर एक प्लस का आइकॉन है, तो इसको क्लिक करके एक नया टैब खोल लो और इस पर टाइप करो nve.edu.in। एंटर कर दो आप। ठीक है, कुछ ऐसा खुल जाएगा आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपने ये वाला ऑप्शन लेना है, नीट MDS 2021। ठीक है, सी open a new tab in your Chrome browser and type in nde.edu.in, and when you click enter, this page will open up. Right, this is the official website of National Board of Examination NBE, which conducts the NEET MDS. So you have to click this NEET MDS 2021। आप इस NEET MDS 2021 को क्लिक कर लो। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको पेज खुलेगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, अब तो रजिस्ट्रेशन करा नहीं सकते, न्यू लॉगिन, सॉरी एप्लीकेंट लॉगिन। आपको लॉगिन करके आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं या अपना रिजल्ट देख सकते हैं बाद में। लेकिन अभी जिस चीज़ के लिए मैंने आपको बुलाया है वो ये है, क्लिक हियर फॉर द मॉक टेस्ट। राइट, सी व्हेन यू क्लिक नीट MDS 2021, this page will open up. Here we have the link for new registration, but the new registration cannot be done because it is already closed. So second is applicant login. You can click here and open up your page where by entering your login ID and password you can download your admit card, see all the details that you have filled, and also at a later stage you can download your mark sheet and the scorecard. But the purpose of today's video is to show you all how to attempt the exam. So here click here for mock test. तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलता है। जब आप एग्ज़ाम 16 तारीख को दे रहे होंगे तो सेम ऐसा ही पेज आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा। फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर आपका फोटोग्राफ होगा, यहाँ पर आपका नाम होगा और यहाँ पे नीट MDS 2021 लिखा होगा। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर नंबर है। आपका कंप्यूटर नंबर आपको पहले सेंटर पे बताया जाएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो होता है वो दोनों यूजुअली सेंटर पे आपको बताया जाएगा, नहीं तो वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आपका यूजुअली लॉगिन आईडी जो होता है वो आपका रोल नंबर होता है और पासवर्ड भी रोल नंबर होता है, लेकिन ये डिटेल आपको सेंटर पर बताया जाएगा। ये चेंज भी हो सकता है। यहाँ जो 1111 लिखा है ये डेमो के लिए लिखा हुआ है। So for my English viewers, when at the actual center, you will be having the same screen on your computer. But the difference will be here, you will be having your photograph. Here your name will be written, and here it will be written NEET MDS 2021. C001, here your computer number will be written. The computer number will be allotted to you at the center. So you have to find the computer number and sit in front of it, right? Usually the login ID and password is told at the center. Don't worry, it will be told to you. But as per as the trend goes, it is your roll number and the password is also the roll number. So when you put your roll number over here and in the password section, and then you have to click sign in. So when you sign in, this page will open up, right? See here, all the instructions are given, like the exam duration will be written here 3 hours. This is a mock test, so that's why it is written 20 minutes. But in the actual examination, here it will be written 180 minutes, that is 3 hours, right? Okay, this I'll explain subsequently. जो आपने देखा नहीं होगा, वो क्वेश्चंस जिसको आपने अभी तक देखा नहीं होगा वो इस कलर में होगा। वो क्वेश्चन जिसको आपने देखा पर आंसर नहीं किया वो रेड में होगा।
वो क्वेश्चंस जिसको आपने देखा और आपने जवाब दिया है वो ग्रीन कलर में होगा। वो क्वेश्चंस जिसको आपने देखा, जवाब नहीं दिया है, लेकिन आपने मार्क्ड फॉर रिव्यू किया है, मतलब उसको आपने जवाब देना बाद में सोचा है कि इसको मैं बाद में जवाब दूंगा, वो इस कलर में होगा, पर्पल कलर में, वॉलेट कलर कह सकते हैं। और वो क्वेश्चंस जिसको आपने जवाब तो दिया है लेकिन आपने ये भी मार्क किया है कि मैं इसको दोबारा देखना चाहूँगा, तो उसमें इस वॉलेट कलर के साथ ये आइकॉन बना होगा। याद रखिएगा एक बात, जो आप छोड़ देते हैं, जो रेड कलर वाले क्वेश्चंस होंगे, या ऐसे क्वेश्चन है जिसका आपने जवाब नहीं दिया है, तो इस पर आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ग्रीन वाले अगर गलत कर देते हैं तो इसकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ग्रीन वाले क्वेश्चंस अगर आप जो किया हुआ है ये अगर आप गलत कर देते हो तो आपको इसके निगेटिव मार्क्स कट जाएंगे। पर्पल वाले जो क्वेश्चंस होंगे, ये वाले, इसके जवाब अगर आपने तो जवाब दिया नहीं है तो इसके भी अगर सही या गलत होने का कोई सवाल नहीं होता, तो इसके ना नंबर मिलेंगे ना नंबर कटेंगे। यानी कि नंबर 2 के कोई जवाब नंबर ना मिलेंगे ना कटेंगे। नंबर 4 जो ये कलर होगा इसके भी ना नंबर मिलेंगे ना कटेंगे। लेकिन नंबर 5 खोज का सर्वप्रथम परिणाम है। नंबर 5 अगर आपने रिव्यू नहीं किया दोबारा आकर, तो आपका जो जवाब आपने दिया था वही फाइनल माना जाएगा, और अगर वो गलत होगा तो उसके नंबर कटेंगे, अगर वो सही होगा तो उसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना एक बार, ये हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को आपको टिक करना होता है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ये है कि आप नीट में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसको आप बाहर जाकर डिस्क्लोज नहीं करोगे। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपसे बाहर पूछ सकते हैं कि जॉन स्मिथ आपका नाम लेकर कि भाई साहब आपने क्या क्या कुछ क्वेश्चंस याद है तो हमें बताइए। आप एक बात याद रखना, अगर आपने जो अटेम्प्ट अंदर किया है वो बाहर आके आप किसी से भी डिस्कस करते हो तो आप क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हो, जिसके लिए आप जेल भी जा सकते हो, आपको फाइन हो सकता है, और तो और आपकी कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकती है। इसलिए बाहर आकर जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ये अपने साथ सीक्रेट रखें, किसी से भी डिस्कस ना करें। एग्ज़ाम शुरू होने का जब टाइम हो जाएगा तो आपको इन्विजिलेटर बोलेगा कि ये आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करो। इसको एग्ज़ाम टाइम शुरू होने से पहले अगर आप क्लिक करोगे तो आएगा कंप्यूटर नॉट रेडी। ठीक है, तो आप वेट कीजिए जब तक अनाउंस नहीं हो जाता कि आप अब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब ये अनाउंसमेंट हो जाए और आपने ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को टिक कर दिया है तो आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें यहाँ पे आपका नाम होगा लिखा हुआ, यहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफ होगी। ठीक है, और ये सेक्शन के आगे यहाँ पर ए लिखा होगा और बी लिखा होगा। ये मॉक पेपर है इसलिए इसमें ए बी नहीं लिखा हुआ, लेकिन वहाँ पर ए और बी लिखा होगा। ए को आप क्लिक करेंगे तो आप नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में होंगे और उसमें आपको 200 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप नॉन क्लिनिकल की जगह क्लिनिकल पहले अटेम्प्ट करें तो यहाँ पर ए की जगह बी को क्लिक कर देना आप, यहाँ पर बी लिखा होगा, बी को क्लिक करने के बाद आपको नॉन क्लिनिकल से आप क्लिनिकल में शिफ्ट हो जाओगे। आप कभी भी क्लिनिकल से नॉन क्लिनिकल में, नॉन क्लिनिकल से क्लिनिकल में शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ सेक्शन ए और सेक्शन बी को अलग अलग क्लिक करके। अब जैसे ये सवाल का जवाब है, ये क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन। एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन, राइट। अब इस क्वेश्चन का अगर आपको जवाब पता है, मान लो इसका जवाब आपको पता है IFN गामा, तो आप ये जवाब दे दिया और सेव नेक्स्ट कर दो तो ये ग्रीन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 ग्रीन। ठीक है, मान लो अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ यूरेट लोडिंग थेरेपी इन गाउट। तो मान लो इसका जवाब आपको लगता है कि ये 2 अटैक्स ऑफ गाउट होगा, लेकिन आप इसको रखना चाहते हो कि आप इसको एक बार फिर देखना चाहते हो, तो आप इसको क्लिक करना मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो ये कलर वॉयलेट हो गया और वॉयलेट के साथ ये आइकॉन बन गया है। इस आइकॉन का मतलब है कि आपने जवाब दिया है इसका, और जवाब तो दिया है लेकिन आपने इसको रिव्यू के लिए मार्क कर रखा है, राइट। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। गायनेकोमेशिया इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। सेम विच ऑफ गायनेकोमेशिया इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है। अब
इसमें सेमिनोमा, हाइपोथायरॉयडिज्म, एड्रिनल ट्यूमर एंड प्रोलैक्टिनोमा। अगर मैं एड्रिनल ट्यूमर को क्लिक कर दूं, नहीं सॉरी, अगर मैं, तो ये इसके ऑप्शंस हैं, और अगर मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसका सोचता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब शायद मुझे याद आ जाए, तो मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकता हूँ। तो अब ये 3 नंबर जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो कि ये अनआंसर्ड है, लेकिन ये वॉलेट कलर में। इसका मतलब है कि अगर आप इसको अटेम्प्ट नहीं करोगे तो उसके नंबर ना मिलेंगे ना कटेंगे, लेकिन आपने इसको रिव्यू के लिए रख रखा है। जबकि 2 पे आपने जवाब दिया है, लेकिन इसको आप रिव्यू करना चाहते हो। तो अगर 2 को आप एंड तक नहीं देखते हो तो 2 का जवाब, आपका जो 2 अटैक्स ऑफ गाउट है, ये फाइनल मान लिया जाएगा। अगेन आप किसी भी क्वेश्चन पे उस क्वेश्चन नंबर को क्लिक करके जा सकते हो। मान लो आप क्वेश्चन नंबर 11 देखना चाहते हो, तो आप सीधा क्वेश्चन नंबर 11 पे क्लिक करो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कंसिस्टेंटली शोन टू इम्प्रूव आउटकम्स विद पेशेंट्स विद PSC। अब मैं ये आंसर कर देता हूँ एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो अभी 11 नंबर भी इस आइकॉन के साथ आ जाएगा। अब वापस आप 4 नंबर पे आ सकते हो, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करते रहना है आपने। सेव एंड नेक्स्ट करने से क्या होगा, या मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अच्छा, मान लो आप इस क्वेश्चन पे आते हो और आपको लगता है नहीं, आप 100% श्योर नहीं हो और आपको ये भी जवाब गलत हो सकता है, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स कर दे सकते हो एंड सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे पार्ट ए लिखा होगा और सेक्शन ए और सेक्शन बी लिखा होगा। यहाँ पे आप माउस का एरो देखिए, यहाँ पे ए लिखा होगा, यहाँ पे बी। इन दोनों को क्लिक करके आप क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन नंबर को क्लिक करके आप उस क्वेश्चन नंबर पे जा सकते हैं। मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करने से पहले अगर आपने उस सवाल का जवाब दिया है तो वो जवाब आपका फाइनल माना जाएगा जब तक कि आप उसे चेंज नहीं करते। इसलिए अगर आपने दोबारा सोचने के लिए आना है उस क्वेश्चन पे और आप 100% श्योर नहीं है या 50% श्योर नहीं है उस जवाब पे, तो आप ज़रूर एक काम कीजिए कि आप आंसर मत कीजिए उस क्वेश्चन का। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 को हमने यहाँ पे देख रहे हैं, ये वॉयलेट भी है और ये आंसर्ड भी है। हमने पेंटॉक्सीफेलिन का जवाब दे रखा है, ठीक है। तो मैं आके इसको कभी भी आंसर चेंज कर सकता हूँ या आंसर डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन पे शिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी, ये मॉक पेपर इसलिए इसमें पार्ट ए और पार्ट बी नहीं लिखा है, यहाँ ए और यहाँ बी लिखा होगा। आप ए और बी में से किसी को भी क्लिक करके क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल में शिफ्ट हो सकते हैं। आपके लिए एक सलाह है, अगर आप पहले तो क्लिनिकल से शुरू करना, आप यानी पार्ट बी से शुरू करना, क्योंकि एज अ डेंटिस्ट हम क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से वो जवाब आता होता है हमें और हम ज़्यादातर सही करते हैं जवाब। तो क्लिनिकल पहले अटेम्प्ट करने से, यानी पार्ट बी पहले अटेम्प्ट करने से क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप खुश रहोगे, आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। और पार्ट बी में कम टाइम लगता होता है क्योंकि वो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, हमने फाइनल ईयर तक पढ़ा होता है उसको। वेयर एज पार्ट ए जो है, जो नॉन क्लिनिकल है, उसमें बहुत सोचना पड़ता है, तो वो टाइम टेकिंग है। इसलिए मेरी पर्सनल सलाह है, आप पार्ट बी पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। पार्ट बी यहाँ क्लिक करके और पार्ट ए यहाँ क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस कन्फ्यूजन अगर है उन्हें कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, तो उनको ये बात समझ में आ जाए। यहाँ पे टाइम लेफ्ट चल रहा होगा, यहाँ पे आपने कितने आंसर जवाब दिए हैं, कितने आपने छोड़ दिए हैं, कितने आपने अभी तक देखे नहीं हैं, कितने आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है लेकिन जवाब नहीं दिया है, और ये वो क्वेश्चंस के नंबर हैं जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है और जवाब भी दे चुके हो। सो इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। प्लीज़ टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। Completed your BDS or MDS and still not confident with clinical aspects of running a clinic? We understand that with the ever-growing competition in this field, the challenge to establish your professional identity is high. You need to be equipped with the best of clinical expertise to make a mark and create an impactful identity. That's where we come in. We are Odontis Eduversity, one of the finest dental academies in India with over 4,000 successful trainees globally.
Through our Eduversity, you can train yourself in specific fields of dentistry to start your own private practice with confidence and deliver the best treatment to your patients with authority. On-the-job training with real patients, latest equipments and experienced staff not only provide the best practical exposure but also provide students a unique opportunity to enhance their skills and excel professionally. Contact us to know more about this course.